Hello everyone, welcome back to Innovation Classes. In today's session, we are going to explore Unit 1 Capstone project. From your artificial intelligence, this is a crucial topic. ये बहुत ही important topic है that brings together everything you have learned about artificial intelligence to solve real world problems. Let's go on. Now, what is a capstone project? The definition of the capstone project: a capstone project is like the grand finale of your AI learning journey. It's a hands-on project that combines all your AI knowledge to solve a real-world problem. Now here are some examples, but before it, I want to repeat the definition in my own words. A capstone project allows students to apply their AI knowledge and skills to tackle practical challenges, showcasing their abilities to think critically, analyze data, and build intelligent systems. Now the examples of the capstone project in the artificial intelligence. There are some examples: studying images to diagnose diseases, forecasting students' results, building a chatbot using IBM Watson or Google Dialogflow. The next, image classifier. The next is analyzing social media to access emotions. And the last, using regression to predict market trends. These are some examples of the artificial intelligence capstone project. और आपने इन पे एग्जाम्पल्स को अगर आप याद करेंगे तो आपने इन पे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं. फॉर एग्जाम्पल, डायग्नोस डिजीजेस पे प्रोजेक्ट आपने बनाया है. इमेज क्लासिफायर पे आपने अटेंडेंस सिस्टम बनाया है. ठीक है. रिग्रेशन, प्रिडिक्ट इट्स ट्रेंड्स, आपने जो है सैलरी प्रिडिक्शन किया है इसके थ्रू. नाउ, why is the capstone project important? Why is the capstone project important? Here is the question. सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे practical application. It is a practical application bridges the gap between theory and practical या practice. तो ये गैप भर देता है हमारा थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच. एग्जाम्पल हम ले लेते हैं: यूजिंग रिग्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट हाउस प्राइसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनहेंस योर एबिलिटी टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. इसमें आप क्या कर सकते हैं? बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं. प्रिडिक्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस यूजिंग पास्ट ग्रेड्स, अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन. द नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो डेवलपमेंट. Then what do you mean by portfolio development? A completed capstone project is valuable addition to your academic or professional portfolio. Now after that, teamwork and collaboration. Many capstone projects involves teamwork, improving collaboration and communication skills. Now the next is what makes a good capstone project. यहाँ पर जो मैंने रेड कलर से लिख रखा है डेट इज इन योर कोर्स, बट जो मैंने ग्रीन कलर ब्लू कलर से है ये आप चाहे पढ़िए चाहे मत पढ़िए, दिस इज एक्स्ट्रा. नाउ व्हाट मेक्स ए गुड कैप्स्टोन प्रोजेक्ट? ए क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. डिफाइन द रियल वर्ल्ड इश्यूज यू आर सॉल्विंग. इसमें रियल वर्ल्ड इशू ही लेंगे हम. अगर आप कैप्स्टोन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो वी डिफाइन द रियल वर्ल्ड इशू. And for example, how can we predict crop yield to help farmers plan better? This is the real world example. And relevant data, use high quality data sets. आपके पास जो data set होना चाहिए वो high quality होना चाहिए. For example, weather data, soil quality, crop yield history. This is the examples. Appropriate AI techniques. कौन सी आप techniques use करेंगे? Choose the right algorithm. You can choose the right algorithm for it. And एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं क्लासिफिकेशन फॉर स्पैम डिटेक्शन. स्पैम डिटेक्शन जैसे हमारा ईमेल डिटेक्ट करते हैं कि वो स्पैम है या नहीं है, तो क्लासिफिकेशन फॉर स्पैम डिटेक्शन. रिग्रेशन फॉर द प्राइस प्रिडिक्शन. रिग्रेशन हम यूज करते हैं किसी की प्राइस प्रिडिक्शन के लिए, जैसे हमने किया था सैलरी प्रिडिक्शन के लिए हम हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए रिग्रेशन का यूज करते हैं. इसको मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा. Evaluation and refinement. Evaluate using metrics like RMSE और accuracy. भाई इसके बाद हमें इसका accuracy भी चेक करना पड़ेगी. तो evaluate your model using the metrics like RMSE, root mean square error के थ्रू
और एक्यूरेसी के थ्रू हम इसको एवेल्युएट करते हैं। द लास्ट इज डिप्लॉयमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लॉयमेंट? डिप्लॉय द मॉडल इन ए रियल वर्ल्ड सिनेरियो। भाई अब आपको अपने मॉडल को जो आपने तैयार किया है उसे आपको रियल वर्ल्ड में ले जाना होगा, चेक करना होगा। ए वेब एप्लीकेशन प्रेडिक्ट स्टॉक प्राइसेस। कोई भी वेब एप्लीकेशन है वो स्टॉक का प्रेडिक्शन बताती है, देन दिस इज द डिप्लॉयमेंट। चलिए नेक्स्ट आता है विच टाइप ऑफ कैप्स्टन प्रोजेक्ट यू कैन वर्क ऑन। भाई कौन कौन से कैप्स्टन प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर सकते हैं, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इस पे वर्क कर चुके हैं ऑलरेडी। स्टॉक प्राइस प्रेडिक्टर, सबसे पहले हम स्टॉक प्राइस प्रेडिक्टर पे वर्क करेंगे। यूज हिस्टोरिकल डेटा, इसके लिए हमें पुराना डेटा लेना पड़ेगा टू प्रेडिक्ट स्टॉक ट्रेंड्स यूजिंग रिग्रेशन। ऐसे ही क्रिकेट मैच में भी हम कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी, आज मैच भी होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का, तो यू कैन प्रिडिक्ट द ओल्ड डेटा, है ना, predict the data with the help of the old data. Sentiment analyzer, analyze social media posts using natural language processing. Now next is student result predictor. इसमें हम क्या करेंगे? Predict exam result based on attendance and past record. भाई आपके पास past scores होगा, उनका record होगा और attendance होगी, तभी आप predict कर सकते हैं कि इस बार एग्जाम में वो कैसा बिहेव करेंगे। अब आपने अगर एआई की क्लास अटेंड करी है हमारे स्कूल में तो आप अच्छा अटेंड करेंगे, पेपर आपका अच्छा होना चाहिए, और नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, ये मैं वीडियो आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि शायद 3 मंथ्स हो चुके हैं हमें और आपको मिले हुए, कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। मूवी टिकट प्राइस प्रेडिक्टर, प्रेडिक्ट टिकट प्राइस बेस्ड ऑन डिमांड्स एंड पॉपुलैरिटी। जितनी डिमांड बढ़ जाएगी, हाउसफुल जाएगा तो भाई टिकट तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हाउसफुल नहीं जा रहा है तो उसका प्राइस हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो बहुत सस्ता हो जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटी रिकग्नाइजेशन, यूज सेंसर डेटा टू क्लासिफाई एक्टिविटी लाइक वॉकिंग और रनिंग। भाई सेंसर के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कहाँ वॉकिंग हो रही है और कहाँ रनिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। ह्यूमन एक्टिविटी रिकग्नाइजेशन, इस तरीके से हम ह्यूमन एक्टिविटी को रिकग्नाइज कर सकते हैं, जैसे आजकल के हमारे सीसीटीवी कैमरास में रिकग्नाइज करेगा तभी रिकॉर्डिंग होगी, रिकग्नाइज नहीं करेगा तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। Now the next point is defining the problem. How will you define the problem? We can define the problem in 6 steps in the AI project cycle. The first step is problem definition. सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को ही डिफाइन करना पड़ेगा भाई कि आप कौन सी प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको डिफाइन करिए। फिर आपका है डेटा गैदरिंग, भाई डेटा कलेक्शन, डेटा स्कूपिंग, ये भी आपको करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद आपका आता है फीचर्स डेफिनेशन, फीचर्स डेफिनेशन के बाद आपका आता है एआई मॉडल कंस्ट्रक्शन, एंड आफ्टर दैट एवोल्यूशन एंड रिफाइनमेंट, एंड लास्ट इज डिप्लॉयमेंट। अब इन सब के लिए आपका एआई मॉडल तैयार है बिल्कुल, बट इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा पैटर्न। इज देयर ए पैटर्न? If there is a pattern, then you should use the AI techniques. Otherwise, go for alternate solution. Machine learning relies on the pattern. कोई भी आप machine learning लेते हैं तो वो pattern check करता है ना। Example, using the past sale data to predict future sales. अगर आप past sale data को देखेंगे तभी आप future sales का data को predict कर सकते हैं। तो if there's a pattern, apply the AI techniques. Otherwise, if there are no pattern, consider alternative solution. Now, types of AI questions, predictive analysis. यहाँ पर कुछ questions हमारे सामने generate हो जाते हैं। Now, the questions are which category and which category, यहाँ पर हम बोल सकते हैं predictive analysis में classification. Is this email spam? तो क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे भाई, या तो ये स्पैम है और या स्पैम नहीं है, या तो ये क्लास ए में आ रही है, अगर स्पैम है तो रेड से हम शो कर रहे हैं, ऐसे फिगर आपको दिख ही रही है, बहुत अच्छी फिगर यहाँ पर जनरेट की है, एआई ने ही जनरेट की है, ये ध्यान रखिए। और बी आपका है, कौन सी है, ये आपकी स्पैम नहीं है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल। यू कैन ऑल्सो नो द क्लासिफिकेशन, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा था क्लासिफिकेशन, ये होता है जब हम किसी भी चीज को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, देन दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। आपकी ईमेल स्पैम है और नॉट स्पैम है। नाउ आफ्टर दैट देयर इज हाउ मच, क्वेश्चन इज, यहाँ पर क्वेश्चन था विच कैटेगरी, तो ये हो गया कौन सी कैटेगरी का, भाई क्लासिफिकेशन कर दिया, मेल स्पैम है या नॉट स्पैम है। नाउ हाउ मच और हाउ मेनी, दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन।
जब भी आप प्रिडिक्ट करते हैं, अपने कहीं जाते हैं दिल्ली में, नोएडा में, वहां पर हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना होता है आपको। नाउ प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइसेस बेस्ड ऑन द फीचर्स लाइक साइज एंड लोकेशन। भाई लोकेशन जितनी पॉश होगी उतना ही वहां पर हाउस का प्राइस ज्यादा होगा, जितना ज्यादा उसमें रूम्स होंगे उतना ही प्राइस ज्यादा होगा। तो इस डायग्राम को बहुत आसानी से समझिए, ये डायग्राम भी एआई से जनरेटेड है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बुक में नहीं मिले, शायद गूगल पे हो सकता है मिल जाए। नाउ यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज रिग्रेशन, ये आपकी रिग्रेशन कहलाती है और इसको हम बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। तो ध्यान रखिएगा, ये रिग्रेशन की लाइन है, एक ही लाइन पे हमने सारे हाउसेस को ले लिया है। और प्राइस कैसे निकाला है, 100 प्लस 50 इंटू नंबर ऑफ रूम्स। नाउ व्हेन वी गो इंक्रीजिंग द रूम, यहाँ पर आपके रूम बढ़ते जा रहे हैं तो आपका प्राइस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, आप एवब जाते जाएंगे, जैसे ये वाला जो होम है ये आपका लगभग 400 प्राइस आ रहा है, यहाँ पर $400 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आपका 500। तो जितना आप इंक्रीज रूम नंबर ऑफ रूम इंक्रीज करते रहेंगे उतने आप प्राइजेस बढ़ाते रहेंगे। इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द लोकेशन, यहाँ पर हमने लोकेशन के थ्रू नहीं दिखाया है इस ग्राफ को। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच ग्रुप, दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। नाउ ग्रुपिंग कस्टमर बेस्ड ऑन परचेजिंग बिहेवियर। अब भाई कोई कस्टमर है वो ज्यादा बड़ा मकान नहीं खरीदता है, उसके केवल 2 मेंबर्स हैं, देन वो 2 कमरों का मकान खरीदेगा। ठीक, तो वी हैव ग्रुपिंग। नाउ दिस एंड दिस, 3 तरीके के लोग हैं जो 2 रूम सेट ले रहे हैं, 4 रूम सेट ले रहे हैं और 8 रूम सेट ले रहे हैं। तो इसको कहलाता है ये, दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। विच ग्रुप, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुपिंग कस्टमर बेस्ड ऑन परचेजिंग बिहेवियर, दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। इज दिस यूजुअल, भाई ये क्या यूजुअल है, ये आपके पास 2 कमरे के मकान के पैसे हैं और आप 8 कमरों का मकान खरीद ले, नहीं, ये यूजुअल नहीं है। दिस इज अनोमली डिटेक्शन एग्जाम्पल। जब भी हमारे साथ फ्रॉड होता है तो इस तरीके से हम फ्रॉड को डिटेक्शन कर लेते हैं। ग्राफ में आप चेक कर सकते हैं, ये भी एआई जनरेटेड ग्राफ है। नॉर्मली मैं एटीएम से इतने पैसे निकालता हूँ, टाइम के साथ साथ इतने पैसे निकालता हूँ, टाइम के साथ साथ इतने पैसे निकालता हूँ, लेकिन अचानक मैंने इतने सारे पैसे निकाल लिए एटीएम से, देन दिस इज कॉल्ड अनोमली डिटेक्शन। ठीक, now next question is which option should be taken, recommendation। now what is the recommendation, ये भी AI generated है भाई। जब आप सर्च करते हैं गूगल पे, जब आप सर्च करते हैं नेटफ्लिक्स पे, जब आप सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजन पे कोई भी चीज, तो वो ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन देती है आपको। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रिकमेंडेशन। ये आपका यूजर है, यूजर ये आइटम सर्च कर रहा है, ये सारे प्रोडक्ट हैं और ये सारे प्रोडक्ट आ गए, देन इट विल रिकमेंड यू, ये आपको रिकमेंड करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आप लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप इसे ओपन करेंगे किसी भी एप्लीकेशन को, देन वहां पर आपको एड्स शो होने लगेंगे, दिस इज कॉल्ड रिकमेंडेशन। तो ये चारों पांचों आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। विच कैटेगरी, दिस इज क्लासिफिकेशन। हाउ मच और हाउ मेनी, दिस इज रिग्रेशन। विच ग्रुप, क्लस्टरिंग, एंड इज दिस यूजुअल, अनोमली डिटेक्शन, एंड द लास्ट इज रिकमेंडेशन। इसके बाद आता है व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग। नाउ इन द डिजाइन थिंकिंग there are 5 stages of design thinking: empathize, define, ideate, prototype and test। ये पांचों आपको याद करनी पड़ेंगी। फर्स्ट इज अंडरस्टैंड यूजर नीड, भाई क्या यूजर की नीड है आपको बताना पड़ेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं कि एक फिटनेस ऐप आपको बनानी है, फिटनेस के लिए एक फिटनेस ऐप आप अपने कस्टमर को देना चाहते हैं, तो एम्पैथिस क्या होगा इसमें, अंडरस्टैंड यूजर फिटनेस गोल्स, भाई उसके गोल्स क्या हैं। अंडरस्टैंड द यूजर नीड, भाई उसके गोल्स क्या है, वो पतला होना चाहता है, वो लंबा होना चाहता है, दीज आर द गोल्स। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। नाउ डिफाइन, डिफाइन में क्या आएगा, यूजर स्ट्रगल विद मोटिवेशन, भाई आप उससे कह रहे हो पतले हो जाओ तो आपको मोटिवेट भी करना पड़ेगा। क्लियरली स्टेट द प्रॉब्लम, अगर वो आपको क्लियरली प्रॉब्लम बताएगा, पिज्जा डोसा वो नहीं खा रहा है तभी तो पतला होगा। चलिए, डिफाइन यूजर स्ट्रगल विद मोटिवेशन, स्ट्रगल करना पड़ेगा उसे मोटिवेशन के साथ कि भाई नहीं खाना है, नहीं खाना है। उसके बाद आता है आइडिएट, ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबल सॉल्यूशन। आइडिएट मतलब डेवलप पर्सनलाइज्ड वर्कआउट प्लान्स,
भाई एक सा वर्कआउट प्लान आप सबको नहीं दे देंगे। किसी का वेट है 85 केजी, किसी का वेट है 100 केजी, दोनों का प्लान अलग अलग होगा, डाइट प्लान अलग अलग होगा। दिस इज कॉल्ड आइडिएट। आइडिएट मतलब अलग अलग प्लान। तो चलिए, नेक्स्ट इज प्रोटोटाइप। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोटाइप? क्रिएट ए सिंपल वर्जन। आपको एक सिंपल वर्जन बनाना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वो वैसे ही कुछ नहीं कर पाएगा। नाउ आफ्टर दैट टेस्ट रिफाइंड बेस्ड ऑन द फीडबैक। दिस इज बेस्ड ऑन द फीडबैक। टेस्ट तो आपका तभी हो पाएगा ये मॉडल जब आपको फीडबैक सही मिलेगा, उसी से इसकी आप एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा गैदर यूजर फीडबैक आपको मिल जाएगा जब आपका टेस्ट होगा मॉडल। नाउ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं डिजाइनिंग थिंकिंग के। कैलकुलेट बुक वॉल्यूम्स। बहुत सारी बुक्स आपकी दे रखी हैं। मान लीजिए एआई की ही बुक है, आपके एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं और उनके पास एआई की बुक है, और फिजिक्स की बुक है, मैथ्स की बुक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एआई की बुक है, यहाँ पर हमने लिख दिया फिजिक्स की बुक है। एआई की बुक की लेंथ 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर का कुछ भी मान सकते हैं कितने सेंटीमीटर है, विथ 2 हो गई और हाइट इसकी 3 हो गई। इफ देयर आर 2 types of books, the AI and physics, then you can easily calculate the volume of the book length into width into height. एक बुक AI की है, आपने क्या करना है 1 into 2 into 3, ये आ गया 6, एंड इसकी वॉल्यूम आ जाएगी आपकी 2 into 4 into 3. 2 into 4 into 3 means 2 4 jar 8, 3 jar 24. टोटल वॉल्यूम आ गया आपका 30. इट्स वेरी सिंपल। तो एक फंक्शन आपको बनाना होगा। फंक्शन क्या करेगा? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वन बुक। इफ देयर आर सेवरल बुक्स, एआई की भी है, फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है, तो एक फंक्शन ऐसा बनाना है जिसमें वो एक बुक का वॉल्यूम कैलकुलेट कर ले। और एक बुक का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद इफ देयर आर 10 स्टूडेंट्स या 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास ऑफ एआई, तो वहां 6 into 20 कर देगा। दिस इज द लूप। कितनी बार लूप चलेगा? 20 बार। पहले एक बार मतलब 6, फिर वॉल्यूम 12, फिर वॉल्यूम 18, फिर वॉल्यूम 24। इसी तरीके से ये 20 टाइम्स चलेगा अगर 20 स्टूडेंट्स हैं। दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द लूप। एग्जाम्पल आपका दे रखा है, ये आपका एक पाइथन का छोटा सा प्रोग्राम है। इसको समझने की अगर रटना है आप रट सकते हैं, समझाना भी मुश्किल है क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे इतनी आसानी से। कुछ नहीं है, यहाँ पर एक डिफाइन किया है हमने, कैलकुलेट वॉल्यूम। दिस इज फंक्शन। फंक्शन क्या कर रहा है? वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा है। फंक्शन क्या कर रहा है? कैलकुलेट द वॉल्यूम। कैसे? लेंथ, विड्थ और हाइट। और रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है? इन तीनों का मल्टीप्लाई। मतलब आपने वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम हमने कैसे निकाला था? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यहाँ पर 6 हमारा वॉल्यूम आ गया था। उसके बाद हमने क्या करा? बुक की लिस्ट है, ये लिस्ट हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बुक की लिस्ट है, यहाँ पर 2 लिस्ट है आपकी, 1 2 3 एंड 2 4 3। इस बुक की लिस्ट को हमने क्या किया है? फॉर बुक इन बुक्स, ये जो लिस्ट हमने यहाँ पकड़ लिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम और मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। फॉर लूप हमने लगा दिया है, 1 बार 2 बार 3 बार, और फिर हमने प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के बाद हमें मिल गया यहाँ पर वॉल्यूम 6 और वॉल्यूम 24, जैसे कि अभी हमने निकाला था। Now come on to the second example, decomposition and app development task. बहुत अच्छा है ये भी, डिकम्पोजिशन ऑफ ऐप डेवलपमेंट टास्क। सबसे पहले प्रॉब्लम, हाउ डू यू ब्रेक डाउन द टास्क ऑफ क्रिएटिंग मोबाइल ऐप। भाई आपको मोबाइल ऐप बनानी है। एक मोबाइल ऐप बनाना बहुत बड़ा टास्क है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? व्हाट काइंड ऑफ ऐप? फिटनेस ऐप आपकी थी। हु इज द टारगेट ऑडियंस? भाई फिटनेस वाले ही टारगेट रहेंगे जिनको फिटनेस अपनी बनानी है। व्हाट फीचर्स विल इट हैव? स्टेप काउंटर, वर्कआउट प्लान्स आपने देखे होंगे अगर आप मोबाइल ऐप में ऐसे कुछ यूज करते हैं, वॉच वाला ही ऐप यूज करते हैं तो स्टेप काउंटर वहां पर होता है। What will the interface look like? Example, simple UI with icons। वहां पर आपका सिंपल आइकन्स दे रखे होते हैं ताकि आप आसानी से उस पर क्लिक करें और उसे एग्जीक्यूट करें। What technologies will you use? These are the technologies and how will you test the app? Beta testing with users। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप कई सारे स्टेप्स में डिकम्पोज कर लेंगे एक बड़ी एप्लीकेशन को। एंड द थर्ड वन इज एग्जाम्पल 3, टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन। भाई टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और समझ लीजिए, आई थिंक आपने पहले नहीं पढ़ा है, शायद मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया होगा,
कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ सकते हैं आप। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन लेवल, यहाँ 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं और वो 4 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? द फर्स्ट इज लेवल, द बेस लाइन एवरेज, द सेकेंड इज ट्रेंड, ओवरऑल अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट किसी भी चीज का। मान लीजिए कुछ पैसेंजर्स हैं, वो एयरप्लेन में जा रहे हैं और एयरप्लेन में वो पैसेंजर्स का कभी डाउनफॉल आता है, कभी अपवर्ड आता है। जैसे अभी कुंभ चल रहा है तो सारी की सारी जो है एयरलाइंस फुल चल रही हैं, सारी की सारी गाड़ियां फुल चल रही हैं, ठीक। तो यही है ट्रेंड। सीजनैलिटी, सीजनैलिटी सीजन के टाइम पे जब आपके जो है गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी, आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, तब भी वो इंक्रीज करेगा, है ना, ड्यूरिंग द हॉलीडेज। नॉइज, रैंडम फ्लक्चुएशन। अब ये क्या होता है? कभी एकदम से रैंडम फ्लक्चुएशन कैसे होता है? कहीं लड़ाई छिड़ गई तो एकदम से रैंडम फ्लक्चुएशन होता है भाई, वहां पर कई सारे इंडियंस है बाहर और उन्हें इंडिया आना होता है तो सारी एयरलाइंस फुल हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड नॉइज। आई थिंक आपको ये चारों चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। नाउ एयरलाइन पैसेंजर डेटा सेट एग्जांपल 1949 टू 1960 144 ऑब्जर्वेशंस। तो यहां से लेके यहां तक जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मंथली ऑब्जर्वेशन हमारा जो कस्टमर का है वो 144 है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1950 में लगभग 100 कस्टमर थे, 100 पैसेंजर थे। 1952 में लगभग 200 आए, 1954 में लगभग 300, ऐसे ही ऊपर कस्टमर बढ़ते गए। एक्सपेक्टेड आउटपुट, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमें ध्यान देना होगा कि एक ग्राफ और हम बना रहे हैं और किस तरीके का आउटपुट आता है इस ग्राफ में। चलिए, ट्रेंड, सीजनैलिटी, रेजिडुअल्स और ओरिजिनल डेटा, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं ओरिजिनल डेटा सेट, शो द एक्चुअल पैसेंजर काउंट, जहां पर हमारे एक्चुअल पैसेंजर काउंट हो रहे थे। उसके बाद आपका ट्रेंड आता है, रिवीज द ओवरऑल इंक्रीज इन पैसेंजर ओवर टाइम। भाई ट्रेंड के हिसाब से आपके इंक्रीज जो हो रहे हैं पैसेंजर टाइम के साथ साथ, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड। ये देखिए आपके बराबर यहाँ पर इंक्रीज हो रहे थे टाइम के साथ साथ, क्योंकि अभी आपने पिछले ग्राफ में चेक किया था कि यहाँ 1950 था या 1960 थे, यहाँ 100 कस्टमर थे, यहाँ 600 कस्टमर हो गए। दिस इज द ट्रेंड रिवील, ये वाला ट्रेंड आ गया। सीजनैलिटी, हाईएस्ट पैटर्न्स लाइक हायर ट्रेवल ड्यूरिंग हॉलीडेज। भाई सीजनल है तो आपका हॉलीडेज में हायर पैटर्न ही आपको ये वाला पैटर्न मिलेगा, बहुत सिंपल है। रेजिडुअल्स, रेजिडुअल्स देखिए यहाँ पर आपको ये रेजिडुअल मिल गया और ये कहलाता है आपका मल्टीप्लिकेटिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एयरलाइन पैसेंजर डेटा सेट। आपने एक नहीं, आपने कई सारे ग्राफ से यहाँ पर शो किया है पैसेंजर का डेटा। अब दो वर्ड्स यहाँ पर और आते हैं, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट्स। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। एडिटिव, एडिटिव ये होता है वाई से इसे डिनोट करते हैं, जो इफेक्ट्स हम हैं वो उसे वाई से डिनोट कर रहे हैं और ये वाई से डिनोट करने के बाद जो एडिटिव कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाता है? एडिटिव कॉम्बिनेशन ट्रेंड प्लस सीजनैलिटी प्लस नॉइज, ट्रेंड प्लस सीजनैलिटी प्लस नॉइज। तो ट्रेंड हमारा ये है, सीजनल ये है और एक हमारा नॉइज है, उसको जब हम मिला देते हैं दिस इज कॉल्ड एडिटिव कॉम्बिनेशन। तो यहाँ देखिए मैंने दिखाया भी है, yi is equal to trend plus seasonality plus noise. If the seasonal and noise components changes and trends by an amount that is independent value of trends, seasonal and noise components are said to behave in additive way. मल्टीप्लिकेटिव वे कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव वे में बस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ट्रेंड इंटू सीजनैलिटी इंटू नॉइज, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। द सीजनल एंड नॉइज कंपोनेंट चेंजेस द ट्रेंड बाय एन अमाउंट ऑफ द डेटा डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रेंड्स, द थ्री कंपोनेंट्स आर सेड टू बिहेव इन मल्टीप्लिकेटिव वे। चलिए अब आ जाते हैं चूजिंग द राइट एनालिटिक अप्रोच। भाई ये राइट एनालिटिक अप्रोच है क्या? सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक। अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट, इसमें हमें समझनी होती है भाई पास्ट इवेंट्स कौन सी है। एनालाइजिंग लास्ट मंथ सेल, और फिर हम एनालाइज कर पाते हैं कि लास्ट मंथ सेल हमारी क्या होगी। डायग्नोस्टिक एनालिटिक, डायग्नोस्टिक एनालिटिक में क्या होगा? व्हाई समथिंग हैपेंड, भाई ऐसा हो क्यों रहा है आखिर। इन्वेस्टिगेटिंग वेबसाइट ट्रैफिक ड्रॉप्स, तब आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक ड्रॉप क्यों हो गया है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और परसेप्टिव एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसके बाद है। फॉरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स, यहां पर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में हम क्या करेंगे?
भाई फ्यूचर ट्रेंड्स को चेक करते हैं, फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। और एग्जाम्पल इसका क्या होगा, प्रिडिक्टिंग स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉक मार्केट को चेक करते हैं। उसके बाद है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, इसमें हम क्या देखेंगे, रिकमेंडेड एक्शंस, भाई कौन कौन से एक्शंस रिकमेंड हैं ऑन द डेटा, बेस्ड ऑन द डेटा। सजेशन मार्केट स्ट्रेटजीज, भाई आप सजेस्ट करेंगे कि अब आइसक्रीम बेचनी चाहिए, ठंड का मौसम चला गया है, गर्मी आने वाली है, तो सजेस्ट करेंगे, ठीक। तो ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो यहाँ आपका यहाँ पर ये चारों डेफिनेशन अच्छी तरह याद कर लीजिए, इनके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है कॉग्निटिव एनालिटिक, इसमें क्या है, ह्यूमन थिंकिंग। क्या ह्यूमन की थिंकिंग है, मिमिक ह्यूमन थिंकिंग। एग्जाम्पल आपका आ जाएगा जैसे सिरी और एलेक्सा। क्लियर हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह चेक कर लीजिए आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे आ जाते हैं, डेटा रिक्वायरमेंट्स। व्हाट आर द डेटा रिक्वायरमेंट्स। अब डेटा रिक्वायरमेंट्स में हम डेटा कलेक्ट ही करेंगे। आई थिंक डेटा रिक्वायरमेंट्स तभी हमारा कंप्लीट होगा जब हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। Now data requirements in the AI project. The data scientist must determine the following if the issue at hand is a recipe. So to speak, and data is an ingredient. जब हम कोई रेसिपी बना रहे होंगे तो डेटा हमारा बिल्कुल इंग्रेडिएंट की तरह है। कोई इंग्रेडिएंट अगर नहीं पड़ेगा तो रेसिपी हमारी नहीं बन पाएगी। तो इसमें क्वेश्चंस हमारे क्या है, विच इंग्रेडिएंट्स यानी कि डेटा टाइप्स आर रिक्वायर्ड। कोई भी आप डेटा रिक्वायरमेंट है तो किस टाइप का डेटा आपको चाहिए, हाउ टू सोर्स और कलेक्ट देम, कैसे उसे कलेक्ट किया जाए, हाउ टू अंडरस्टैंड और वर्क विद देम, कैसे उसे समझा जाए। सब आपने प्रोजेक्ट एआई प्रोजेक्ट साइकिल में पढ़ा है कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में। एंड हाउ टू प्रिपेयर द डेटा टू मीट द डिजायर्ड आउटकम। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके बाद इट इज क्रूशियल टू एस्टैब्लिश डेटा रिक्वायरमेंट्स फॉर डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन बिफोर बिगिनिंग द डेटा कलेक्टिंग एंड द डेटा प्रिपरेशन स्टेजेस ऑफ प्रोसेस। कई सारे प्रोसेस होते हैं इसमें। द इनिशियल डेटा गैदरिंग, दिस entails determining the necessary data content format and sources। यहां पर आ जाते हैं हम। देखिए यहां पर समझने की बात क्या है, यहां पर समझने की बात ये है कि यहाँ डेटा आपका पहले क्या है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग समझना पड़ेगा, फिर आपको अप्रोच करना पड़ेगा डेटा रिक्वायरमेंट्स, डेटा कलेक्शन, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा प्रिपरेशन। भाई डेटा अंडरस्टैंडिंग के बाद डेटा प्रिपरेशन, फिर मॉडल आप तैयार करेंगे, फिर एवोल्यूट करेंगे, फिर डिप्लॉयमेंट और फिर फीडबैक लेंगे। सिंपल है। डेटा रिक्वायरमेंट्स, भाई डेटा रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी कौन करेगा, व्हाट आर द डेटा रिक्वायरमेंट्स, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। ये वेयर और व्हेन आप एक साथ रख सकते हैं। तो हु आपका हो गया फर्स्ट डब्ल्यू, व्हाट हो गया सेकंड डब्ल्यू, ये थर्ड डब्ल्यू, और ये 4W और एक हाउ भी साथ में है। तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है 4W क्या होता है, जबकि ये आपके फिगर दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक, कोर्स में है। तो 4W क्या होता है देख लेते हैं। डेटा कलेक्शन, व्हाट ऑकर्स ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, क्या क्या करना पड़ता है। व्हेन यू कलेक्ट द डेटा देन देयर इज ए स्टेप, प्रॉब्लम स्कूपिंग कहलाता है, जिसको हम 4W कहते हैं। ये प्रॉब्लम स्कूपिंग, प्रॉब्लम को समझ के डेटा कलेक्ट करना। हु, व्हाट डू यू मीन बाय हु, हु मतलब पार्ट हेल्प्स अस comprehending and categorizing who all are affected directly and indirectly with the problem। मान लीजिए रोड पे गड्ढा है, तो उस गड्ढे से कौन कौन अफेक्टेड हो रहे हैं, जो भी अफेक्टेड हो रहे हैं वो कहलाते हैं स्टेक होल्डर्स। तो हु आर अफेक्टेड विद द प्रॉब्लम। व्हाट, तो व्हाट मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट पार्ट हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। भाई understanding this block you also gather evidence to prove that the problem you have selected exists। आपको फोटोग्राफ खींचना पड़ेगा, गड्ढा है वहां, what is the problem, गड्ढा है भाई। where is the problem, where does the problem arise। भाई मेरे घर के सामने गड्ढा है, जो रोड मेन रोड जा रही है वहां पर गड्ढा है। where is the problem, why is the given problem worth solving। इस प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व किया जाए। this is the, ये भी आपकी रियल टाइम प्रॉब्लम, रियल टाइम प्रॉब्लम है, रियल लाइफ की प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैप्स्टन प्रोजेक्ट। ये सॉल्व करने से सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए हमें सॉल्व करनी चाहिए, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई गिरे ना। तो दिस इज 4W, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई। हु आर अफेक्टेड विद द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या व्हाई द गिवन प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग। Now the next is what is the train test split।
Now here imagine teaching a student math. You give them lessons, trading data, and the latter test them with a quiz testing data. जब आप पढ़ा रहे होते हैं मैथ्स तो आप कुछ नोट्स देते हैं पढ़ने के लिए, कुछ एग्जाम्पल्स कराते हैं और कुछ एक्सरसाइज देते हैं, उसके बाद ये आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं एंड द लेटर टेस्ट देम विद ए क्विज टेस्टिंग डेटा। अब आपका एग्जाम में टेस्ट होने वाला है भाई कि आपने कितना एआई पढ़ा है, कितना कैप्स्टन प्रोजेक्ट पढ़ा है, टू सी हाउ मच दे हैव लर्नड, दैट एक्जैक्टली हाउ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वर्क्स इन द एआई। इसी तरीके से आपका ये वर्क करता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। Now definition, train test split is a technique to divide a data set into two parts। भाई ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट। ट्रेनिंग सेट में वो डाटा होता है जिसको हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, टेस्टिंग सेट में वो डेटा होता है जिससे हम मॉडल को टेस्ट करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं। Why is train test split important? आखिर ये important क्यों है? Prevents overfitting, help ensure the model does not just memorize but learns pattern that generalize well. A student who memorizes maths problem might fail when giving different questions। भाई जो आपने पढ़ाया ही नहीं है उसे डिफरेंट क्वेश्चन दे दिए जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? वही प्रॉब्लम आएगी जैसा कि आपके फिजिक्स में हुआ था। फिजिक्स के पेपर में आई थिंक मैंने सुना है कुछ टफ आया था, कोई बात नहीं। एवेल्युएट्स मॉडल परफॉर्मेंस, लेकिन एआई का पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एआई पेपर। पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। इट गिव्स ए रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ हाउ द मॉडल विल परफॉर्म इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। भाई रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आपका मॉडल कैसे वर्क कर रहा है, बैलेंस, बायस एंड वेरिएंस। ए गुड स्प्लिट हेल्प्स इन अचीविंग ए बैलेंस बिटवीन अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। टिपिकल डेटा स्प्लिट रेशियो, इसमें क्या आएगा आपका 80% से 20%। हियर आर द मोस्ट कॉमन वेज टू स्प्लिट योर डेटा। 80% ट्रेनिंग, 20% टेस्टिंग। तो मोस्ट कॉमन स्प्लिट, ज्यादातर इसी तरीके से हम स्प्लिट कर देते हैं। टेस्टिंग कम कर पाते हैं और ट्रेनिंग ज्यादा देते हैं। 70% ट्रेनिंग, 30% टेस्टिंग। व्हेन यू नीड ए लार्ज टेस्ट सेट, बहुत सारे टेस्ट सेट हैं आपके पास। अब आप देखिए आपका जो कोर्स होता है वो 80% है और हम केवल आपका जो एग्जाम ले रहे हैं वो 20% का ही ले रहे हैं। सारा का सारा तो आपसे कल एग्जाम में नहीं पूछेंगे 25th को। उसके बाद 70% ट्रेनिंग, 30% टेस्टिंग, मतलब बहुत ज्यादा वही टेस्ट करना है आपको। जैसे सिविल का एग्जाम आप बार बार दे रहे हैं, पहला हुआ फिर मेंस हुआ फिर आपका कल इंटरव्यूज होंगे आपके। अब उसके बाद ट्रेनिंग टेस्टिंग फॉर स्मॉल डेटा सेट्स। स्मॉल डेटा सेट्स है तो आप भाई पूरा ही का पूरा ये एक चैप्टर है पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद इसे रिवाइज करके एक बार छोटा सा एग्जाम दे लीजिएगा कि आपको ये सब आता है नहीं आता है। एवल्यूएटिंग मॉडल परफॉर्मेंस, किस किस तरीके से आप मॉडल की परफॉर्मेंस को एवल्यूएट करते हैं। तो एक पहला इसमें आता है मीन स्क्वायर एरर, MSE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज क्वेश्चन इस पे आते हैं, इसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। तो मेजर द एवरेज स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्ट एंड एक्चुअल वैल्यूज। जो भी हमारी जो है प्रिडिक्ट और एक्चुअल वैल्यूज हैं उसके बीच में ये मेजर करता है वैल्यूज को। लोअर MSE इंडिकेट्स द बेटर परफॉर्मेंस। ध्यान रखिए जब MSE लोअर होगा तो इसका मतलब क्या है, जो परफॉर्मेंस है वो हमारी क्या होगी, बेटर होगी। तो ये मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था प्रैक्टिकल के टाइम पे, वो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था वो भी, ठीक है। चलिए, तो उसमें यही था आपका कि एक्चुअल प्रेडिक्शन क्या है और प्रिडिक्टेड डेटा क्या है और एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या क्या है। आपने प्रिडिक्ट क्या किया और एक्चुअल में वहां आग लगी है या नहीं लगी है। जंगल में आपने मॉडल बनाया, वो प्रिडिक्ट कर रहा है भाई जंगल में आग लग गई है, लेकिन एक्चुअल में तो आग लगी नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर आती है। उसके बाद आता है आपका रूट मीन स्क्वायर एरर, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RMSE। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जितने भी आपके जो है वैलिडेट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस चेक कर रहा है मॉडल की, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट ऑफ MSE फॉर बेटर इंटरप्रिटेबिलिटी। R square scores indicates how well the model explains the variability of the data. Closer to 1 means better performance। अगर इसकी वैल्यू 1 के पास आती है तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, बेस्ट होगी। उसके बाद ट्रेन टेस्ट वैलिडेशन स्प्लिट को हमने यहाँ पर फिर से कर दिया है। ट्रेनिंग सेट 60% टू ट्रेन द
model. Validation set 20% to fine tune model parameter. Testing set 20 to evaluate final model performance. और ये है इसका ग्राफ. ट्रेनिंग डेटा सेट 60 है, वैलिडेशन हमने इसका 20% किया और टेस्टिंग हमने 20% किया है. इसके बाद लास्ट आता है आपका वैलिडेशन के लिए. ये आपके बोनस कॉन्सेप्ट हो सकता है ये एग्जाम में ना हो, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं. छोटा सा है. Cross validation. Another popular technique is cross validation, where the data set is split into multiple parts, folds, and the model is trained and tested multiple times for more reliable performance. बहुत ही simple है. K-fold cross validation divides data into K parts and trains the model K times. इसमें हम आपको यूज करेंगे K-fold क्रॉस वैलिडेशन. तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट. अगर अभी भी आपको कोई डाउट है देन यू कैन मैसेज मी, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज लाइक करिए. और मैं दूसरे भी अभी आपके 2 चैप्टर्स और हैं, कोशिश करूंगा कि उनको भी मैं आपको अच्छी तरह समझा दूं ताकि आप एग्जाम्स में बहुत अच्छा करके आए. ये आपका कंप्लीट चैप्टर है, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.